General plane motion is a motion where bodies can both translate and rotate at the same time. Translate and rotate at the same time. So there are three approaches to solve the problem related to the general plane motion. Number one is absolute motion analysis. Second one is a relative motion analysis, and third one is an instant sequence analysis. So absolute motion analysis is a method used to analyze general plane motion, a motion that undergoes a simultaneous translation and rotation. Here we have a dumping truck in this example. So dumping pane on truck rotates about a point A and is operated by the extension of the hydraulic cylinder S, and it goes from B to C. The angular position of the dumping pin or dumping pane can be specified by the angular coordinate theta, and the position of the point C on the pane is specified by the position coordinate S. Here we can relate the hydraulic cylinder and the resultant angular velocity of the pane. अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ही ये हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है ये ऑपरेट करेगा या एक्सटेंड होगा, तो ये डंपिंग जो पेन है वो रोटेट करेगा अबाउट दिस पोजीशन, दैट इज फिक्स्ड एक्सिस एट ए पे जो है वो रोटेट करेगा. सो इट इज बेसिकली ऑपरेटेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर एस. जैसे ही ये एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये डंपिंग बिन क्या है वो रोटेट करेगा अप एंड downward direction में about a fixed axis, that fixed axis is A. So both the motions are basically interrelated with one another. So general plane motion जो specify होगी by specifying both the motion, that is translation and the rotation. So basically ये जो hydraulic cylinder होगा that is performing a translation motion, and ये जो fixed axis पे rotation होगी that is basically a rotation about a fixed axis. अब ये जो मोशन है इट विल बेसिकली बी एनालाइज बाय एनालाइजिंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट एंड अनदर इज अ एंगुलर कोऑर्डिनेट्स. सो वन वे टू रिलेट दिस मोशन इज to use a rectilinear position coordinate S to locate the point along its path, and an angular position coordinate theta to specify the orientation of the line. अब ए से क्या करें कि हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो है लोकेट करें और जो थीटा से इसकी ओरिएंटेशन को हम फाइंड आउट करें. The two coordinates are then related using the geometry of the problem by direct application of the time differential equation जो हमने डिस्कस की थी. v is equal ds upon dt, a is equal dv upon dt और omega d theta upon dt and alpha angular acceleration d omega upon dt. The motion of the point and the angular motion of the line can be related. इससे हम फिर जो मोशन है पॉइंट की और ये जो एंगुलर पोजीशन है इस लाइन की, इनको हम दोनों को रिलेट करें. अब हम आते हैं द प्रोसीजर फॉर एनालिसिस. अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर फॉर एनालिसिस. द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन of a point P undergoing a rectilinear motion can be related to the angular velocity. अब ये जो पॉइंट P की जो रेक्टिलिनियर मोशन है बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द लाइन कंटेन्ड विद इन अ बॉडी यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर. अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लोकेट करेंगे. लोकेट पॉइंट P on the body using a position coordinate S which is measured from a fixed origin and is directed along the straight line path of the motion of the point P. अब कोई भी पॉइंट जो है हम इसके ऊपर लोकेट करेंगे. लेट्स से दिस पॉइंट इज अ C. So measure from a fixed reference line the angular position theta of a line lying on line in the body. अब इससे क्या होगा कि this body is basically undergoing a certain rotation and that is a rotation about a fixed axis. यहाँ से हमें थीटा को फाइंड आउट करेंगे, मेजर करेंगे. From the dimension of the body relate S to theta.
that means कि s is a function of certain theta using a geometry and or a trigonometry. अब क्या करेंगे हम, take the first derivative of s is equal to f of theta with respect to time to get a relationship between v and omega, linear velocity and angular velocity. अब जब हम इसको डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक साइड पे लीनियर वेलोसिटी मिलेगी और दूसरी साइड पे हमें क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी. Take the second time derivative to get relationship between acceleration and alpha. So that means angular linear acceleration and angular acceleration में अगर हम इसको डबल डेरिवेटिव ले लें इसका या इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें तो हमें angular acceleration and linear velocity मिलेगी और उनके दरमियान relation. In each case, the chain rule of the calculus must be used when taking the time derivative of the position coordinate equation. अब इस डेरिवेशन के दौरान जो डेरिवेटिव होगा वो हम फाइंड आउट हम यूज करेंगे चेन रूल, जो हमने कैलकुलस में पहले ही डिस्कस स्टडी कर लिया है. तो अब हम सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम. तो कैसे है, लेट्स से द एंड ऑफ द रॉड शोन इन फिगर दिस मेंटेन्स अ कांटेक्ट with a cam by means of a spring. If the cam rotates about an axis passing through the point O with an angular acceleration alpha and angular velocity omega, determine the velocity and the acceleration of the rod when the cam is in the arbitrary position theta. अब हम इस रॉड की हम क्या मालूम करेंगे, वेलोसिटी मालूम करेंगे एंड एक्सीलरेशन. Basically, rod is having a rectilinear motion, rectilinear motion. That means it is basically having a translation, and this disc is basically having a curvilinear, having a rotation about a fixed axis. अब इसमें अब देख ले हम जैसे हमने कहा तो पहले सबसे पहले क्या है कि locate point P on the using body using the position coordinate s. उसके बाद measure from fixed reference line. सबसे पहले उसके बाद है from the dimension of the body relate s to theta. अब हम इस पे आएंगे. Coordinate theta and x are chosen in order to relate the rotational motion. Let's say हमारा जो ये distance है from this rod से, from this position O से, point O से ये x है और ये फिगर हमें गिवन है. तो ये जो दिस पोजीशन अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट विल बी r cos थीटा और ये भी हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेगा r cos थीटा. तो बेसिकली x इज नथिंग बट 2r cos थीटा. अब हम इसका क्या करेंगे, हमें ये पॉइंट मिल गई जो हम पॉइंट कह रहे थे, ये वाला पॉइंट P, वहां से हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया, s मालूम कर लिया. s इज बेसिकली दिस वन x. अब इसको हम लेट से डेरिवेटिव निकालते हैं. x इज इक्वल टू r cos थीटा का अगर आप डेरिवेटिव निकाल लें, x इज इक्वल टू r cos थीटा यही है. इसका अगर आप टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू 2r cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है, बेसिकली माइनस साइन थीटा d थीटा अपॉन dt. तो बेसिकली ये हमें मिलेगा 2r sin थीटा d थीटा अपॉन dt क्या है, इज नथिंग बट ओमेगा. तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं r ओमेगा sin थीटा. अब हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमें मिल गई वेलोसिटी. उसके बाद हम इसका अगेन दोबारा डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो वेलोसिटी का जैसे हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगी. तो dt इज इक्वल टू माइनस 2r. ये चेन रूल के ऊपर अप्लाई होगा, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. अब लेट से हम इसका डेरिवेटिव u इंटू v फॉर्म में लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. साइन थीटा d ओमेगा अपॉन dt प्लस ओमेगा अगेन कांस्टेंट रहेगा. साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा और
थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये यहाँ पे इसने यही लिखा हुआ है, तो माइनस 2r साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा आई, तो ये होगा अल्फा साइन थीटा, ये माइनस 2r बाहर कांस्टेंट है, प्लस ओमेगा सेम रहेगा, cos थीटा रहेगा, और डी थीटा अपॉन डी टी का डेरिवेटिव होगा अगेन ओमेगा, तो ये हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। तो इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि हमने कैसे रेक्टिलिनियर या जो ट्रांसलेटिंग मोशन है उसको रिलेट किया, उससे फाइंड आउट किया हमने एंगुलर कोऑर्डिनेट्स, जो एंगुलर हमारे पैरामीटर्स हैं। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट v and A are opposite to the direction of the positive x. This seems reasonable when you visualize the motion. अब हम इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि the large window shown in figure 16.10 is opened using a hydraulic cylinder AB. If the cylinder extends at a constant rate of 0.5 meter per second, determine the angular velocity and angular acceleration of the window at the instant theta is equal to 30. अब जैसे ही ये हाइड्रोलिक सिलेंडर, बेसिकली विंडो ऑपरेट इस हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर हो रहा है, और जैसे ही ये हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, तो ये विंडो ओपन हो रही है एंड इट मेक्स अ सर्टेन एंगल दैट इज थीटा। थीटा इज नथिंग बट एंगुलर पोजीशन है। सो जो हमारे एंगुलर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है एंगुलर में थीटा है, और जो हमारी ट्रांसलेशन में है वो है एस है। So the angular motion of the window can be obtained by using the coordinate theta, whereas the extension or the motion along the hydraulic cylinder is defined using a coordinate s, which measures its length from a fixed point A to the moving point B. ये point B क्या है? Basically it is a moving point. So these coordinates can be related using the law of cosine, namely. अब हमने शुरू में हमने कैलकुलस में देखा हुआ है कि लॉ ऑफ कोसाइन हम कब यूज करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ए बी एंड सी एंड थीटा। अब इन साइड्स में से अगर लेट्स से हमारे पास कोई भी दो साइड्स और एक एंगल जो है हमें मालूम हो, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए या थर्ड जो हम साइड हैं हम वो कैसे मालूम करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन में लॉ ऑफ कोसाइन बेसिकली इट सेज दैट ए स्क्वायर law of cosine basically it says that a square is equal to b square plus c square minus 2b c cos alpha। अब हम इसमें यहाँ पे भी लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। लेट से हमारे पास ये थीटा गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है। लेट से दिस इज ए, तो ये हमारी ए क्या होगी, ए स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। अगर आप इनके वैल्यूज b की जगह पे आप जो है ये b है और ये c, ये b की जगह 2 रख लें, c की जगह 1 रख लें, और इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 1.239 मीटर। अब ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारा रिलेशन है जो हमें मिला लॉ ऑफ कोसाइन से। अगर इस पोजीशन वेक्टर को हम डेरिवेटिव निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिकली हमें वेलोसिटी मिलेगी। अब इसका अगर डेरिवेटिव निकाल लें हम, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2s और s का डेरिवेटिव होगा ds अपॉन dt। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। -4 अगर आप कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा, और cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस sin थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव होगा d थीटा अपॉन dt। तो 2s ds अपॉन dt क्या है, बेसिकली वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। तो ये होगा
2s vs और माइनस माइनस प्लस होगा, ये होगा 4 sin थीटा d थीटा अपॉन dt। तो ये 2 में कैंसिल, 4 को डिवाइड कर लेगा, तो ये होगा 2 sin थीटा d थीटा अपॉन dt क्या है, इज नथिंग बट ओमेगा। उसके बाद हमें जो है वेलोसिटी इसमें गिवन है, लीनियर वेलोसिटी गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड एंड थीटा इज इक्वल 30। अगर हम इसमें वैल्यू पॉइंट आउट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी 8.0 पॉइंट ए पे। अगेन फर्दर टेकिंग द टाइम डेरिवेटिव, अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव निकालें, इसका अगर हम टाइम डेरिवेटिव दोबारा निकाल लें, एस वी एस 2 sin थीटा एस वी एस 2 sin थीटा ओमेगा अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें एस वी एस, अब अगेन ये जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे बाय टेकिंग अ चेन रूल, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लें, लेट से हम निकाल लेते हैं वी एस और डी एस अपॉन डी टी प्लस एस डी वी अपॉन डी टी, ये इस साइड का डेरिवेटिव निकल गया। अगेन फिर 2 कांस्टेंट निकलेगा, ओमेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा डी थीटा अपॉन डी टी प्लस 2 sin थीटा डी ओमेगा का निकलेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो v ds अपॉन डी टी ये हमें इक्वेशन मिल गई। तो इस इक्वेशन से ds अपॉन डी टी क्या है, बेसिकली नथिंग बट vs है, वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। तो v स्क्वायर s बेसिकली नथिंग बट ये पोजीशन को शो कर रहा है, वहां पे s हमने डिनोट किया था, s अगेन पोजीशन वेक्टर है, एक्सीलरेशन 2 cos थीटा d थीटा अपॉन dt इज नथिंग बट ओमेगा, ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ये ओमेगा आ जाएगी, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होगा प्लस 2 sin थीटा अल्फा। तो सिंस एक्सीलरेशन इज नथिंग बट dv अपॉन dt, देन अब यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी हमें कांस्टेंट गिवन है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन होगी तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होगी, दैट मीन्स एक्सीलरेशन will be zero, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारी एक्सीलरेशन जीरो हो गई। तो ये टर्मिनोलॉजीज ये जीरो हो गई और ये एंगुलर एक्सीलरेशन रहेगी। तो हमें अल्फा का वैल्यू जो मिला माइनस 0.415 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अल्दो हमारे पास जो है लीनियर एक्सीलरेशन जीरो है, स्टिल वी कैन गेट एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन में अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट विंडो हैज एन एंगुलर डिसेलरेशन। अब एक्सीलरेशन में हमेशा नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली डिसेलरेटिंग कर रहा है, उसकी जो मोशन है वो बेसिकली, या जो उसकी एक्सीलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, या उसकी मोशन है वो रिड्यूस हो रही है।